हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखते वक्त जो हम सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, underdeveloped economy is that economy in which development ability is very measurable। चलिए फ्रेंड्स, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की कुछ डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम पी टोडारो, underdeveloped economy is that economy in which there are a low level of living, absolute poverty, low per capita income, low consumption level, poor health services, high death rate, high birth rate, and dependence on foreign economies. According to Jacob Wiener, an underdeveloped country is a country which has good potential prospects for using more labor capital or more available natural resources or all of those to support its present population on a high level of living। चलिए फ्रेंड्स, अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में इंडियन इकोनॉमी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक है वो है लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम इज द चीफ करेक्टरिस्टिक्स of Indian economy as an underdeveloped economy. According to the World Development Report 2018, per capita income of India is 7,680 US dollar on the basis of purchasing power parity and 2009 US dollar on the basis of exchange rate। फ्रेंड्स, अगली जो करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी के अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में वो है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इन इंडिया लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ इवन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ इज वेरी लो। चलिए फ्रेंड्स, अगली करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं जो कि है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। Indian economy is technologically backward in contrast to developed economies of the world. Outdated technology is commonly used in industries like textile, sugar, and extra. Production with backward technology not only adds to the cost of production but it is also of poor quality। चलिए फ्रेंड्स, अगली करेक्टरिस्टिक्स करते हैं इंडियन इकोनॉमी की एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लो रेट of capital formation is a typical characteristics of India as an underdeveloped economy. Low rate of capital formation in India is caused by low per capita income, lack of banking organization, and lack of investment facilities। चलिए फ्रेंड्स, अगली करेक्टरिस्टिक्स करते हैं जो कि है लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Another characteristics feature of India is as an underdeveloped economy is that pace of industrialization in India is low. Basis and capital goods industries like machines, building industries, fertilizer, chemical industries have failed to show any perceptible breakthrough। अगला जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
फ्रेंड्स, जो इनकम है भारत में, इनकम संपत्ति है, वो समान रूप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई ज्यादा अमीर है तो कोई ज्यादा गरीब, किसी के पास ज्यादा धन दौलत है तो कोई बिल्कुल ही गरीब है। In India, there is wide disparity in the distribution of wealth and income. According to Human Development Report 2008, in India, the poorest 10% of population gets 3.6% share in national income. On the other hand, the richest 10% people enjoy 31% share in national income. चलिए फ्रेंड्स, अगला फीचर जानते हैं इंडियन इकोनॉमी का एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जो कि है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। Growth rate of population in India is high compared to developed countries of the world. India is the second largest populated country in the world. Due to rapid population growth, there is a excessive pressure on natural resources, which are particularly the non-renewable resources, which are suffering rapid exploitation and depletion. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि इंडिया भारत की दूसरी सबसे आबादी वाला देश है, दूसरा। और कुछ ही सालों में इंडिया पहली पोजीशन भी मिल सकती है इंडिया को जनसंख्या के मामले में। जो भारत की अधिक जनसंख्या है, इससे जो भारत के नेचुरल रिसोर्सेज पर जो दबाव पड़ता है, जो कम है, जो रिन्यूएबल भी नहीं है, उससे जो प्रेशर पड़ता है, इस वजह से भारत की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। ये भी एक मेन कारण है इंडियन इकोनॉमी का एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। In India, agriculture provides employment to more than 50% of population, but the contribution of agriculture to national income is barely 70%. 17%. Agriculture in India is very backward because of technological and institutional factors. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि रोजगार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। भारत में लगभग 50% से ज्यादा कृषि में लगे हुए हैं भारत की जनसंख्या। परंतु जो कृषि से जो इनकम होती है, वो नेशनल इनकम में उसका शेयर मुश्किल से 17% है। और जो भारत की कृषि है, वो भी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की वजह से बैकवर्ड है। इस वजह से भी इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में गिना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगली करेक्टरिस्टिक्स करते हैं इंडियन इकोनॉमी की एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। एट प्रेजेंट 5.6% of labor force in India remained unemployed. Massive unemployment implies high wastage of manpower and consequently a high gulf between potential output and actual output in the economy. चलिए फ्रेंड्स, अगली करेक्टरिस्टिक्स करते हैं इंडियन इकोनॉमी की एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। Shortage of able efficient entrepreneurs. India suffers from acute shortage of such entrepreneurs. This is yet another reason why we are looking forward to FDI. Entrepreneurship comes as a byproduct of FDI, but this is not without a cost. चलिए फ्रेंड्स, अगला फीचर करते हैं, जो कि है लो रेट ह्यूमन कैपिटल।
low rate of human capital is a typical characteristics of India as an underdeveloped economy. Most of the humans are unhealthy and unskilled. Underdeveloped nature of Indian economy is as a result of poor human capital. फ्रेंड्स, जो इसकी हेडिंग में लो रेट ह्यूमन कैपिटल है, इसमें रेट और ह्यूमन के बीच में ऑफ और आएगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, मैंने एक वेब ब्लॉगर बनाया है अपने यूट्यूब चैनल का, जिस पर मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पोस्ट करता हूं। अगर आप चाहो तो वहां जाकर मेरे ब्लॉगर को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और आप सेम पोस्ट वहां पर भी देख सकते हो।